Good morning, everyone. Welcome back to data structures theory session. We are looking at singly linked list delete operations. We have seen delete first, delete last, maybe delete before and delete first occurrence we have discussed. The next part that we want to have a look at is delete all occurrences, because we do not want to stop by deleting only one node. We want to iteratively delete all possible occurrences within the linked list. So we want to search all the occurrences within entire list, and we want to delete all those nodes. So we only stop when our linked list ends. And that's what we discussed earlier also. So let's go through this delete all occurrence process. And as we discussed, after that, we'll jump to the circular linked list. So first of all, let's think about possible cases here. It's a singly linked list, and if your start is null, then there is nothing to delete. Value not found can also be the proper message. But what if you have number of nodes like this way, and possible values are maybe, let's say, 2, 4, 6 and 8. All distinct values. So all occurrence karo ya first occurrence karo, koi fark nahi padega, because you are going to have only one node. But the difference is, in previous example, when you found that data, you terminate your iteration. वो loop break कर दिया था. But in this place, we are not going to break that loop. Data मिले या ना मिले, हमें last तक जाना है. So one possible change here is, you are not going to stop when you found that data. You still iterate it. So the traversal process is going to be something like tr equals to, we'll start from first node. Let it be first node right now. Okay. I'm going to start from the first node, and I'm going to traverse it until my tr itself becomes null. जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें ट्रैवर्स तो करना है. But while I'm traversing that process, while I'm traversing that list, at that time I'm going to compare if tr data is my requested existing value or what. If tr data is existing value, then you want to delete tr. This is what process we want to do. How do we do that? We'll see it. But हमें यहाँ पे delete करना है. Correct? अगर tr data equal to existing value नहीं है, then do nothing. You simply traverse. tr data existing value है तो delete करने के बाद भी आप traverse करोगे. और data equals to existing value नहीं है तो और कुछ नहीं करना, फिर भी traverse तो करना ही है. So anyhow, without else part, I'll say that I want to traverse my linked list. Traverse तो करना ही है, तो else part जरूरी नहीं है. Anyhow, I'm going to traverse it, and here I complete my while loop. इतना समझ में आया? Yes? Not possible. अगर हम tr को ही फ्री कर देंगे तो tr equals to tr points to next नहीं हो पाएगा, and we will handle that part here. अगर tr को delete ही कर दिया तो obviously I am going to jump my tr to some place, next या तो फिर previous. अगर tr को delete करता हूं तो tr को next place पे या तो previous place पे मैं assign कर दूंगा, so that
tr equals to tr next will be executed. So we will handle that part inside if. Any more question? Now this skeleton is going to traverse your entire list and it is going to compare each and every node data. अगर वो node data आपको equal मिलता है, then you are going to delete it. So how do we delete it? Let us see. What if we have 4 2 times? What if we have data 4 2 times and we want to delete 4 all occurrences? So we are going to traverse our linked list from the first node. Now there is one special case, we haven't seen it yet. वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये समझते हैं. So we are going to traverse from the first node tr. और tr का डेटा आप कंपेयर करोगे existing value के साथ. 2 double equals to 4. No. if के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन if के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन tr equals to tr next, मतलब tr जंप कर जाएगा नेक्स्ट नोड पे. And you will repeat that process. tr data double equals to existing value. 4 double equals to 4. Yes. So this if condition becomes true. And in that case, आप if के अंदर जाके करोगे क्या? What you actually want to do here is you want to make it free. आपको क्या करना है? tr को फ्री करना है. You want to delete that node. जहां पे tr है आप उसको डिलीट करना चाहते हो. If you delete this node, तो आपका नया लिंक लिस्ट कैसा होना चाहिए? Your previous node must point to the tr next node. ये होना चाहिए, तभी आप tr को डिलीट कर सकते हो. Now how do you have a previous node value or address? Previous node कैसे मिलेगा? एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लो pre, tr के साथ साथ उसको भी खींचते जाओ. So you start with pre and then जब भी tr आगे बढ़ेगा pre उसके पीछे पीछे आएगा. So what thing we have to do here is we also take pre, initially we set it to null, and when I update my tr, before that I am going to get backup of tr in pre. Yes? Sorry? दूसरे वेरिएबल में tr को स्टोर करें और tr को फ्री कर दें. स्टिल यू हैव एड्रेस ऑफ tr. प्रीवियस नोड का एड्रेस कहाँ है? Clear? Okay. So we have a previous node. Now if you do have a previous node, तो आप क्या कर सकते हो? Previous node के next pointer में आप क्या करोगे? tr का next डालोगे, तो ये वाला लिंक अपडेट हो गया. अगर वो लिंक आपने अपडेट कर लिया तो आप tr को डिलीट कर सकते हो. सो फ्री tr फ्री भी हो गया, अपना काम खत्म. लेकिन जैसे ही मैं इफ के बाहर निकलता हूं, इफ से बाहर आता हूं, तो 2 स्टेटमेंट है मेरे पास. अगर मैं tr को फ्री कर दूं तो tr का बैकअप कैसे लूंगा और tr को नेक्स्ट पे कैसे जंप करूंगा? Not possible. So to make these 2 statements run properly, हमें tr को कहीं ना कहीं तो असाइन करना होगा. जो tr आपका फ्री हो चुका है, उसी tr को आप वापस कहीं ना कहीं लेके आओ अपने प्रॉपर लिस्ट के अंदर, so that these 2 statements can run properly. मतलब ये हुआ कि ये वाला tr जो आपका फ्री हो चुका है,
बिकॉज यू डिलीट दिस नोड, इस टीआर को आप पीछे या आगे एक स्टेप आपका जो एग्जिस्टिंग नोड है वहां पे लेके जाओ। अगर आगे या पीछे वाले नोड में डालोगे तो टीआर का नेक्स्ट मिलेगा और वो आगे जंप करके निकल जाएगा। सो ऑल द लिंक्स आर मैनेज प्रॉपरली, तो वो नेक्स्ट में जंप कर पाएगा। नाउ द डिसीजन दैट वी नीड टू टेक इज, हम इस टीआर को कहां लेके जाएंगे, पीछे 1 स्टेप बैक और 1 स्टेप फॉरवर्ड, कहां लेके जाना है। अगर 1 स्टेप फॉरवर्ड लेके जाते हो, सो योर टीआर इज एट 6, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, टीआर इक्वल्स टू टीआर नेक्स्ट। अगर टीआर 6 पे पॉइंट कर रहा है तो उसका नेक्स्ट वो यहां पे जंप कर देगा। अगर आपने 6 पे डाला तो वो 6 से नेक्स्ट नोड पे जंप कर देगा, तो 6 कंपेयर ही नहीं हुआ। हैव यू कंपेयर्ड 6 विद एग्जिस्टिंग वैल्यू? विदाउट कंपेरिजन आपने एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया। मतलब अगर मैं आगे लेके जाता हूं तो वो नोड स्किप हो रहा है, मैं टीआर को एक स्टेप बैक लेके आऊंगा। कहां पे? व्हेन यू हैव अपडेटेड, अगर डिलीट ही करना है तो फ्री तो करोगे, अगर फ्री करोगे तो अपडेट कैसे करोगे? हम्म आगे, हाँ मीन्स यहां पे आप क्या करोगे, टीआर इक्वल्स टू व्हाट, प्री नेक्स्ट, ओके। ये वाइल कब तक चलेगा, जब तक टीआर डेटा एग्जिस्टिंग वैल्यू है, और अगर नहीं है तो आगे जाके अगेन अपडेट तो करना ही है। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट तो आपको करने ही है। इन दैट केस double while, complexity will increase, nested loop, complexity will increase. So in that case what we do is we bring this tr 1 step back, tr को एक स्टेप पीछे पीछे ले लो, वो प्री पे जाएगा, तो नीचे जाके आप क्या करोगे, टीआर और प्री जो इक्वल थे उसको वापस से इक्वल किया, कुछ फर्क पड़ता है? नो, बट देन वी अपडेट आर टीआर टू द नेक्स्ट नोड, तो वो 6 पे जाएगा और नेक्स्ट टाइम 6 के डेटा को कंपेयर करेगा। So this is going to be somewhat, we can say, the properly handled code. So जब भी मैं टीआर को डिलीट करता हूं, डिलीट करने के बाद टीआर को एक स्टेप बैक डाल दूंगा, so that when I jump to the next node I'll have a proper next node and again I'll compare. So टीआर डिलीट होने के बाद क्या हुआ, एक स्टेप बैक आ गया टीआर, और उसके बाद वापस जंप होके 6 पे गया। Now 6 double equals to 4, no, update your tr, 4 double equals to 4, yes, delete this node because still tr is not null, तो बाहर वाला जो while loop है वो अभी भी चल रहा है, so we are going to delete this node. Now let us verify जो कोड हमने लिखा है वो कोड इस केस में प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगा या नहीं। लेट अस वेरीफाई। अगर टीआर डेटा एग्जिस्टिंग वैल्यू है, यस इट इज, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट में टीआर का नेक्स्ट डालेंगे। व्हाट इज योर प्री? इट इज द प्रीवियस नोड। व्हाट इज टीआर नेक्स्ट?
नल. सो प्रीवियस के नेक्स्ट में टीआर का नेक्स्ट डालो. यस, इट इज ओके. फाइन. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट? टीआर को फ्री करो. कर दिया. टीआर को एक स्टेप बैक लेके जाओ. ओके. टीआर को वापस प्रीवियस पे लेके जाओ. इफ वाला पार्ट खत्म. नेक्स्ट टीआर और प्री को इक्वल करो. ऑलरेडी इक्वल है, चलेगा. एंड देन यू अपडेट योर टीआर. अब अगर टीआर इक्वल्स टू टीआर नेक्स्ट होता है तो टीआर कहां पे जाएगा? And when you come back and try to run this loop, it will break. tr null हो गया तो ये loop break हो जाएगी. And you are done. ये loop खत्म हो गया. You are done with your process. So now look at this place. You have deleted both the occurrences of 4. लिंक लिस्ट में जितने भी 4 थे वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं और नई लिंक भी मैनेज हो चुकी है. राइट? There is one special case. What if user says, I want to delete 2? Delete first. It is delete first. What if this is the case? It is not simply delete first. Recurring delete first. नॉर्मल डिलीट फर्स्ट अल्गोरिथम जो था वो एक ही नोड डिलीट करता था, पहला नोड. एक बार अगर आप ये 2 को डिलीट कर दोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा. हियर वी वांट टू डिलीट ऑल अकरेंसेस. जैसे ही स्टार्ट नेक्स्ट पे जाएगा वहां पे और एक 2 मिलेगा, आपको वो भी डिलीट करना है. जैसे ही आपका स्टार्ट नेक्स्ट पे जाएगा आपको वो भी डिलीट करना है. And that's not the end. That's not the end. What if you have further more occurrences of 2 somewhere else in the linked list? You also need to delete those things. मतलब ये वाला केस जहां पे स्टार्ट अपडेट होता है और ये वाला केस, द नॉर्मल केस वी हैव यूज्ड tr, which process we have seen earlier. तो tr वाला प्रोसेस तो करना ही है. एडिशनली हमें आगे कुछ ये भी करना पड़ेगा. जब तक पहले नोड का डेटा एग्जिस्टिंग वैल्यू मिलता है, आई एम सेइंग till first node data is existing value, you have to delete first. So anyhow you are going to do this process. ये तो करना ही है, but before this you have to go for additional process. जब तक आपको स्टार्ट नोड का डेटा एग्जिस्टिंग वैल्यू मिलता है, टिल दैट पॉइंट आप क्या करते हो? फर्स्ट नोड को डिलीट. so that we can make it free.
But before we make it free, let us update our start. Start को next पे लेके जाओ. And as long as this is a while loop, updated start का data फिर से check हो जाएगा. जब तक ये loop चलेगा वो क्या करेगा? It is going to update start, and again it will check the data of updated start. जब तक equal मिलता है ये while loop चलेगा. So पहले आप ये करोगे, उसके बाद आप वो normal वाला केस करोगे. How do we join both the parts? Let's focus on the algorithm directly. If your start is null, underflow, nothing to delete. लेकिन अगर start null नहीं है तो सबसे पहले आप special case देखोगे. What if your start data is existing value? अगर start का data ही existing value है, then repeatedly we want to delete all those nodes. So we are going to repeat that process. Right? What we will do is we'll get backup of start so that we can make it free, and we are going to update start. ये हमने discuss किया. Now while we are doing this thing, जब तक start का data existing value मिलता है आप start को delete करते जाओगे. What if all the nodes are having same value? All nodes you have deleted, your start will become null. रुकना पड़ेगा ना. So additional condition, start should not be null. तभी ये loop चलेगी. अगर बीच में कहीं start null हो गया तो भी रुक जाओ. And additionally one flag, because last में पूरा process खत्म होने के बाद मुझे कुछ ना कुछ मैसेज तो देना होगा. अगर वैल्यू मिली ही नहीं, पूरा लिस्ट ट्रावर्स करने के बाद आप बोलोगे वैल्यू नॉट फाउंड. तो वैल्यू मिली या ना मिली, to have that decision we'll take one flag. So initialize your flag with 0. 0 मतलब फ्लैग नीचे पड़ा है. जैसे ही आपको वैल्यू मिलती है आप वो फ्लैग को वेव कर दोगे. So जैसे ही आपको वो वैल्यू मिलती है, you set your flag to 1, and that indicates found. अगर फ्लैग 1 हो गया उसका मतलब ये है कि वैल्यू मिली. हम लास्ट में सिर्फ ये देखेंगे कि अगर फ्लैग 0 है तो वैल्यू नॉट फाउंड. दैट्स इट. तो ये स्टेप नंबर 3 से लेके स्टेप नंबर 7 तक जो कोड है, दैट इज द स्पेशल केस, डिलीटिंग ऑल द occurrences ऑफ वैल्यू which occurs at a starting position. Now still we do not return from this place. याद रखो हमने यहां से रिटर्न नहीं किया. We go further and we initialize traversal variable PTR. आप PTR को initialize करोगे. अब अगर आप PTR को पहले नोड पे initialize करते हो तो भी चलेगा. अगर PTR को सेकंड नोड से initialize करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पहला नोड तो ऑलरेडी यहां पे चेक हो चुका है ना. देन व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड नोड. हम अपना ट्रावर्सल प्रोसेस जो है वो सेकंड नोड से स्टार्ट करते हैं. अगर पीटीआर सेकंड नोड पे है तो प्रीवियस नोड स्टार्ट, प्री पीटीआर को स्टार्ट कर दो, और उसके बाद आपका नॉर्मल ट्रावर्सल प्रोसेस. जब तक पीटीआर नल नहीं होता तब तक आप क्या करते हो? यू आर गोइंग टू कंपेयर योर डेटा. इफ योर डेटा इज इक्वल देन प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट, देन यू मेक योर पीटीआर फ्री. अब पीटीआर अगर फ्री हो गया तो लिंक लिस्ट में वापस कहीं ना कहीं तो लाना पड़ेगा. वन स्टेप बैक, तो प्रीवियस पे डाल दो. और अगर ये नोड आपने डिलीट किया मतलब आपको वैल्यू मिला, यू सेट योर फ्लैग. So that's the deletion process. Anyhow, we want to traverse our linked list. So PTR equals to PTR next.
लेकिन पीटीआर को अपडेट करने से पहले पीटीआर का बैकअप, so that is step number 10, 11, 12 and 13. This is your part of loop, and that's going to run till the end of your linked list. After that you simply check, अगर अभी भी flag 0 है तो value not found and you return. अगर flag 0 नहीं है तो आप बोल सकते हो कि हाँ found the value and deleted. अगर कितने occurrences आपको मिले वो भी प्रिंट करना है तो एक काउंटर ले लो, एक अलग से काउंटर ले लो. जब भी आप फ्री करते हो काउंटर को इंक्रीज करो एंड लास्ट में वो काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर दो. So that's delete all occurrences. Look at the process one more time. I'll take a pause here. Try to understand the entire flow. Next part. So that double while loop अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एनी हाउ यू आर गोइंग टू ट्रैवर्स योर लिस्ट अप टू एन, वो सेम. बाहर से अपडेट करूँ अंदर से अपडेट करूँ जाएगा एन तक. तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉमन, लेकिन कोड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ेगी बिकॉज ऑफ डबल वाइल. Well, so that's the delete all occurrences. Now I leave this delete sorted up to you, and singly linked list PPT is already uploaded in the e-content. You can refer all these algorithms. Let's have a look at the next topic, which is circular linked list. Singly circular linked list. So if you focus on the normal linked list, it is in a single sequence, and at the end you have null, which actually indicates this is the end of the list. If you want to make it circular, तो last जो end है उसको पकड़ के start पे join कर दो. If this is your linear part, तो आप क्या करते हो, end को उठा के start में join कर दो, and that makes it circular one. That makes it circular. But if you have a circular one, anyhow you have to identify where is my start. मैं start कहाँ से करूँ? कहीं ना कहीं तो आपसे मतलब आप start को याद रखोगे. This is where I want to start. So we always maintain start. Right? So what we want to do here, if we want to make it circular,
तो लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए. Last node should point to the first node. That's how we make it circular one. And that's what we do here. A last node next pointer should point to the first node. That's how we make singly circular linked list. तो ऑलरेडी जो नल था उसके बजाय हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया. सिंपल. बाकी जो है सेम है. लास्ट नोड के पास जो नल था उसको हटा के पहले नोड का एड्रेस दे दिया. भाई तू ये याद रख ले, फर्स्ट नोड का एड्रेस तू याद रख. मेक्स इट सर्कुलर. That's the singly circular linked list. But because of this, आपको क्या प्रॉब्लम होंगे? How do you maintain insert, delete, display operations? क्योंकि अगर लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल को हटा के फर्स्ट नोड का एड्रेस में देता हूं तो मुझे कहां कहां पे इफेक्ट होगी? When I am traversing my list, जब मैं लिस्ट को ट्रैवर्स करता हूं तो मुझे नल नहीं मिलेगा. वी डो नॉट हैव नल वैल्यू नाउ. अगर नल नहीं मिलेगा तो रुकूंगा कब? दैट्स वन चेंज. कब रुकूंगा? जब मैं वापस स्टार्ट पे आ जाता हूं तब रुक जाऊंगा. दैट इज वन चेंज. नेक्स्ट, इफ इट इज लीनियर और आप बीच में कहीं भी प्रोसेस करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो सर्कुलर है, या लीनियर है. कुछ फर्क पड़ेगा? आगे और पीछे जो नोड थे वही यहां पे आगे और पीछे रहेंगे. नो चेंज देयर. It is same, no problem. But when you perform some operation on first or maybe on last, you have a problem in circular one. क्योंकि यहां पीछे कुछ नहीं था, आगे कुछ नहीं था, तो जो भी अपडेट करना है कर लो. बट इन अ सर्कुलर मैनर, इफ यू आर मेकिंग सम चेंजेस, देन whatever before and after is there, you have to link those two. अगर पूरा सर्कल मेंटेन करना है तो आप जो भी स्टार्ट या एंड डिलीट करते हो उसके आगे पीछे सर्कल में जो आएगा उसको लिंक करना पड़ेगा. वो आपको लीनियर में जरूरत नहीं थी. लास्ट नोड को डिलीट किया, सिर्फ प्रीवियस को अपडेट करो. फर्स्ट नोड को डिलीट किया, सिर्फ सेकंड को अपडेट करो. मतलब स्टार्ट को नेक्स्ट पे लेके जाओ. दैट्स इट. वहां पे कोई सर्कल मेंटेन नहीं करना था, यहां पे करना है. सो द चेंज कम्स इज हियर व्हेन यू परफॉर्म डिलीट फर्स्ट और डिलीट लास्ट, इंसर्ट फर्स्ट और इंसर्ट लास्ट. इंसर्ट फर्स्ट करोगे तो भी लास्ट नोड के नेक्स्ट को अपडेट करना पड़ेगा. अगर इंसर्ट फर्स्ट करते हो, फर्स्ट में इंसर्ट करते हो, फिर भी लास्ट नोड के नेक्स्ट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल में वो कहां पे आना चाहिए? नए नोड पे आना चाहिए. दैट्स वेयर वी नीड एडिशनल पार्ट. अगर नया नोड में कहीं पहले बनाता हूं तो मुझे लास्ट नोड जो है उसको नए नोड पे लाना पड़ेगा सर्कल में लाने के लिए. So that is the additional part here, which means most of the time singly linked list और singly circular linked list दोनों के कोड ऑलमोस्ट सेम रहेंगे.
3 जगह पे आपको चेंज मिलेगा व्हेनेवर यू ट्रावर्स। अब वो ट्रावर्स आप कहीं पे भी करते हो तो चेंज होगा। एंड अदर देन दैट, इंसर्ट फर्स्ट इंसर्ट लास्ट, डिलीट फर्स्ट डिलीट लास्ट, यहां पे चेंज होगा। बाकी सारे ऑपरेशन सिमिलर टू सिंगली लिंक लिस्ट। वेल, व्हाट इज द बेनिफिट और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग सर्कुलर लिंक लिस्ट? सर्कुलर क्यों बनाना है? नॉर्मल सिंगली लिंक लिस्ट से काम नहीं चलेगा? वेल, इट हैज फ्यू एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। व्हेन यू हैव अ नॉर्मल लिंक लिस्ट, एक बार आपने लिंक लिस्ट को एंड तक ट्रैवर्स कर लिया तो आप वापस नहीं आ पाओगे। लास्ट में नल है, you cannot come back. Even you do not have backward link. So there is no way you come back to the previous node or any previous nodes. If you do have a circular linked list, आप उसको सर्कल अराउंड करके वापस से साइकिल चलाओ और जहां पे पहुंचना है पहुंच सकते हो। Yes, it is a lengthy path, but still there is a path. पूरा चक्कर घुमा के वापस आना पड़ेगा, लेंदी है बट पाथ तो है। ओके, सो इन अ linear list it was not possible to come back to previous node, but in circular it is possible. And it also saves time when you want to jump from last to first directly, which was not possible in linear list. So आप एक सिंगल स्टेप में फर्स्ट नोड पे आ सकते हो। नाउ डेफिनेटली डबली लिंक लिस्ट जो है वो बेटर जाएगा सिंगली सर्कुलर से। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। जब सिंगली सर्कुलर खत्म करते हैं तो डबली लिंक लिस्ट भी देखेंगे। बेनिफिट्स और डबली लिंक लिस्ट आर देयर, बट जब बेनिफिट आता है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। एज ऑफ नाउ लेट्स हैव अ लुक एट डिसएडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। लॉन्गर पाथ, लंबा रास्ता लेके आप प्रीवियस नोड पे आए। सो वन पॉइंट इज लास्ट नोड टू फर्स्ट नोड आप सिंगल स्टेप में आ सकते हो, इट्स ओके, बट प्रीवियस नोड पे अगर आपको जाना है तो यू हैव टू ट्रैवर्स योर एंटायर लिस्ट। सर्कल मैनर में पूरा लिस्ट आप फिर से ट्रैवर्स करके आओगे, सो लंबा पाथ। Second point, because you do not have null value anywhere within the list, you have to take extra care when you are traversing. आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि आप स्टार्ट पे पहुंचे या नहीं। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हो देन आप इनफाइनाइट लूप में चले जाओगे। So these are few disadvantages of circular linked list. Let's bear with it and see how we can maintain insert first and insert last. Remaining operations will be similar to singly linked list. Okay. What were the cases in singly linked list? What if your linked list is empty? तो नया नोड फर्स्ट नोड वही लास्ट नोड रहेगा। एंड व्हाट इफ योर लिंक लिस्ट हैज फ्यू नोड्स ऑलरेडी? तो नया नोड फर्स्ट नोड बनेगा। दैट वाज इट, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा लास्ट नोड को नए नोड पे लेके आओ। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। व्हाट इफ योर स्टार्ट इज नल? And what if your start is pointing to few nodes in a circular manner? Now this is a circular singly linked list. It can have any value. So this is our existing status.
एंड वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड. ठीक है, नया नोड लेना है, आपको पता है, अवेल के पास से नया मेमोरी लो, अवेल को अपडेट करो. अगर प्रोग्राम लिखते हो तो मैलॉक करो. सो वी नो हाउ टू टेक अ न्यू नोड. ठीक है, वी हैव टेकन अ न्यू नोड हियर. देन यू ऑलवेज नो, यू स्टोर योर न्यू डेटा. जो भी नया डेटा है डाल दो. So you take a new node, set new node data equals to given value. वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. बट नाउ लेट्स थिंक अबाउट हाउ डू वी मेंटेन द पॉइंटर्स. हम पॉइंटर कैसे मेंटेन करेंगे. इफ इट इज केस 1 जहां पे आपका स्टार्ट नल था, अगर आप नया नोड डालते हो देन योर स्टार्ट शुड अपडेट. आपका स्टार्ट अपडेट होना चाहिए. अलोंग विद दैट हम इसको सर्क्यूलर लिंक लिस्ट बनाते हैं. जो भी लास्ट नोड है वो पहले नोड को पॉइंट करना चाहिए. अगर एक ही नोड है तो वही पहला नोड है, वही लास्ट नोड है, तो वो खुद को पॉइंट करेगा. So that's what we have to do here in case 1. If your start is already null, तो आप क्या करते हो, न्यू नोड के नेक्स्ट में उसी का एड्रेस डालोगे एंड यू अपडेट योर स्टार्ट. That's your case 1. Let's think about second case. अगर आपका स्टार्ट नल नहीं है, एनी हाउ यू आर इंसर्टिंग फर्स्ट, तो आपका स्टार्ट तो अपडेट होना ही चाहिए. लेकिन स्टार्ट को हम हर वक्त लास्ट में अपडेट करते हैं, पहले नहीं. उससे पहले बाकी के पॉइंटर्स मेंटेन करो. तो बाकी के पॉइंटर कौन से हैं. वेल, न्यू नोड जो है वो एग्जिस्टिंग फर्स्ट पे जाना चाहिए. Along with that, आपका जो लास्ट नोड है वो नए नोड को पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के बीच में हमने एक नया नोड डाल दिया. सर्कल में बीच में हमने एक नया नोड डाला है. स्टार्ट और लास्ट नोड दोनों के बीच में आप नया नोड डालते हो. हाउ डू यू मेंटेन दीज पॉइंटर्स. नए नोड का पॉइंटर तो आसानी से मेंटेन हो जाएगा, राइट. बट जो लास्ट नोड है उसका पॉइंटर कैसे मैनेज करोगे. पहले लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा. वी हैव टू ट्रैवर्स. और ट्रैवर्स करके कहां पे रुकना है आपको, कहां पे रुकना है आपको, लास्ट नोड पे रुकना है. वी वांट टू स्टॉप एट अ लास्ट नोड. So let's traverse in the else part. पहले नोड से हम स्टार्ट करेंगे and we are going to traverse it. tr equals to tr points to next. So let us see how can we traverse, how we traverse it. tr को पहले नोड पे डाल दिया और मैं क्या करूंगा, tr points to next नए नोड पे, tr points to next नए नोड पे. So I'm going to do this process repeatedly. Now when do we stop? When we reach at the last node. कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट नोड है. कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट नोड है. सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर क्या होता है, स्टार्ट. सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर स्टार्ट होता है. नाउ व्हेन इट इज इक्वल आई वांट टू स्टॉप. अगर वो इक्वल नहीं है तभी मैं ये लूप चलाऊंगा.
So if tr next is not equals to start, I'm going to run this loop. जैसे ही tr next start हो जाएगा वो रुक जाएगा. Your tr will be at a last node. ट्रावर्सल प्रोसेस खत्म होने के बाद आपके पास स्टार्ट नोड है, आपके पास न्यू नोड है, एंड यू हैव अ लास्ट नोड इन टीआर. राइट, तीनों नोड आपके पास है. मेंटेन योर पॉइंटर्स. every time go for the new node first. न्यू नोड के नेक्स्ट में एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड, उसके बाद लास्ट नोड के नेक्स्ट में नया नोड, और लास्ट में आप अपना स्टार्ट अपडेट करो. Okay, so this is the process for your case number 2, second case. Yes. Okay, what we do first, we always update new node next part, because it is a new memory, I can store anything there. So new node next is what? Existing start. This one. New node next is existing start. That is my first statement. Now the second statement is tr points to next. What is tr? Last node. Tr points to next is new node. So this is what I am updating here. A new node next कहाँ पे जाना चाहिए? नए नोड पे. This is the second step. And the third step is simple, update your start. Clear? So finally, it is going to be something like this one. Start n पे आ गया, n के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद वापस x which is n. तो सर्कल भी मेंटेन हो गया. So if we look at the algorithm, something similar. If avail is null, नई मेमोरी मिलेगी ही नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे. अदरवाइज यू टेक अ न्यू नोड फ्रॉम अवेल, अवेल को अपडेट करो, नए नोड का डेटा सेट करके रख लो. देन यू हैंडल योर स्पेशल केस फर्स्ट. अगर स्टार्ट नल है, then what we do is we update our start. We also make a circle, new node equals to start या new node next equals to new node, जो करना है, both are equal, and then you return. अगर वो केस नहीं है तो आपको लास्ट नोड तक ट्रावर्स करना है. यू टेक ptr. जब तक ptr नेक्स्ट स्टार्ट नहीं मिलता आप ptr को आगे बढ़ाओगे. वंस योर ptr रीच अप टू द लास्ट नोड, आपको 3 स्टेटमेंट लिखने हैं. नए नोड के नेक्स्ट को अपडेट करो, लास्ट नोड के नेक्स्ट को अपडेट करो, और स्टार्ट को अपडेट करो. So the same process that we have discussed. That is your insert first. Now tell me, what should I change in this algorithm to make it insert last? अगर इसी को मुझे इंसर्ट लास्ट में कन्वर्ट करना है तो यहां पे कौन सी लाइन में चेंज करना होगा? अगर आप इंसर्ट लास्ट करते हो तो स्टार्ट अपडेट नहीं होता. If you want to make it insert last, remove this line. काम खत्म. Because it is a circle,
इट इज अ सर्कल, लास्ट नोड में डालूं तो भी नए नोड का नेक्स्ट स्टार्ट ही होगा, एग्जिस्टिंग लास्ट नोड का नेक्स्ट नया नोड बनेगा, बस खाली स्टार्ट अपडेट नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर आपका स्टार्ट ऑलरेडी नल है तो वो अपडेट होना चाहिए। सो स्पेशल केस इज एज इट इज। इफ योर स्टार्ट इज नल तो इंसर्ट लास्ट वही इंसर्ट फर्स्ट हो गया, तो वहां पे स्टार्ट अपडेट होगा। Think about it, and if you have any doubt, you may ask. Let me show you that same algorithm. Yes. Insert last. You do not have anything. तो जो नया आएगा वही लास्ट बनेगा, वही फर्स्ट बनेगा। So we insert that new node. It is something like, अगर आपके पास कुछ है तो उसके पीछे डालो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उसको पहले ही रख लो। We don't tell no. So this is your insert last, the same process. Let's repeat. Avail null है तो overflow, otherwise you take a new node, update your avail and set a data. उसके बाद special case को as it is. If your start is null, then start equals to new node next equals to start. लेकिन हम start को update नहीं करते, यहाँ पे करेंगे। Well, we have to update start here because it is a special case. But in a different case, we simply traverse, we go up to the end, and then we maintain 2 pointers. PTR next equals to new node next equals to start. लेकिन अब हम start को यहाँ पे update नहीं करेंगे, we simply return. Same process, just do not update your start in case 2. That is your insert last. Now, if you know both these processes, what you have to focus here is when you are traversing. When you are traversing, you do not have null. You do not have null. तो ये कंडीशन आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो उस केस में इंसर्ट एट पोजीशन हो, इंसर्ट बिफोर हो या इंसर्ट आफ्टर हो, क्या फर्क पड़ता है? ट्रावर्सल प्रोसेस प्रॉपरली आप अगर हैंडल कर लेते हो, देन यू हैव बोथ ऑल द नोड्स, बीच की लिंक जो मेंटेन करनी है वो एज इट इज रहेगी। So you can go for insert before, you insert after, insert at position, insert in sorted data, everything you can handle. उसके अंदर जो भी स्पेशल केस बनते हैं, insert at position 1, insert first, अभी तो देखा। insert before 5, और अगर 5 आपके स्टार्ट नोड में है, कौन सा केस बनेगा? इंसर्ट फर्स्ट बनेगा, अभी तो देखा। लेट मी क्लैरिफाई, इंसर्ट बिफोर मैं कॉल करता हूं और मैंने एग्जिस्टिंग वैल्यू दिया 5 जो स्टार्ट नोड में है, तो केस कौन सा बनेगा? इंसर्ट फर्स्ट। जस्ट राइट नाउ वी हैव सीन हाउ टू हैंडल इंसर्ट फर्स्ट। What if I say insert after और मैंने जो वैल्यू दी वो लास्ट नोड में है? इंसर्ट लास्ट वाला केस बनेगा जो हमने अभी देखा। What if I say insert at a position और वो पोजीशन ऐसी दी जो लास्ट नोड की है? इंसर्ट लास्ट। इंसर्ट एट पोजीशन 1 तो इंसर्ट फर्स्ट। बीच में कहीं पे भी रखा है, देन यू ट्रावर्स एंड मेंटेन योर पॉइंटर्स। You traverse and maintain your pointers.
वो कौन से पॉइंटर्स होंगे? जो सिंगली लिंक लिस्ट में थे, सेम पॉइंटर्स रहेंगे, नो चेंज. And that's why I don't go for all those operations here, and we directly jump to the delete operation. Right? We'll take a pause here. 1 hour is completed, but we still have another lecture right now. So let's take a break for 2 minutes. Freshen up within the class itself. And then we'll go for the delete operations. The data structure is something which we cannot skip. Software solution. Wherever you want to handle the data, data structure is also considered. So as huh? Okay. Yeah, so let's get back to the linked list part. જેટલી લિંક તૂટી ગઈ હોય પાછી બનાવીએ. Delete operations on circular singly linked list. Same fundamentals. सर्कुलर मैनर में बिफोर फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे कुछ चेंज करना है तभी प्रॉब्लम है. बीच में अगर कुछ चेंज करना है नो प्रॉब्लम, सिमिलर टू सिंगली लिंक लिस्ट.
So in delete also we are going to have a look at delete first, delete last. Other delete operations will be similar to singly linked list. Let's think about delete first. If I want to delete first node from my existing singly circular linked list. Now जब भी आप delete operation देखते हो एक condition common रहती है हर एक जगह पे. What if your singly linked list, or what if your linked list is empty? Nothing to delete, एक printf message, बाहर निकल जाओ. So that will be there in singly linked list, singly circular linked list, doubly linked list, doubly circular also. एक common condition सबसे पहला रहेगा, if your start is null, एक printf message, linked list is empty, nothing to delete, return. Let's think about other cases. What if you have only one node? And what if you have multiple nodes? So we have two different cases and we want to delete first. तो पहला node जो भी है उसको delete करना है. We want to delete that node. Now in your case 1, if you delete that node, your start should become null. एक ही node था जो पहला node था उसको भी आप अगर delete कर देते हो then start becomes null. So case 1, if, how do we decide हमारे पास एक नोड है या एक से ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? अगर स्टार्ट का नेक्स्ट स्टार्ट मतलब वो खुद को ही पॉइंट करता है तो एक ही नोड है. सो वी से दैट इफ स्टार्ट नेक्स्ट is equals to start, then we make it free and we update our start to null. ये हो गया हमारा case 1. Now in the else part we have to think about second case. Now focus on the second part. If you delete your first node, obviously your start should update. But along with that, in a circular linked list, your last node next pointer also need to be updated. Right? ये भी अपडेट होना चाहिए तभी आप 2 को डिलीट कर पाओगे. And after deleting 2, still your linked list remains in a circular manner. So we need to update 2 things: last node next pointer and start. Last node next pointer कैसे मिलेगा? Traverse it. We have a last node. लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को सेकंड नोड पे लेके जाओ. अपडेट योर स्टार्ट. डिलीट योर फर्स्ट नोड. एक टेम्पररी वेरिएबल देना पड़ेगा बिकॉज वंस यू अपडेट योर स्टार्ट, एक बार अगर आपने स्टार्ट अपडेट कर दिया तो पहला नोड कहां पे? वी डोंट नो.
one way is, huh? One way is we can have a temporary variable जहां पे मैं स्टार्ट को अपडेट करने से पहले बैकअप ले लूं, राइट? तो चलेगा, स्टार्ट का बैकअप डेल में लिया, देन वी हैव अपडेटेड स्टार्ट और डेल को फ्री किया. दैट्स वन वे. अनदर वे, व्हाट इफ I make my start free before I update start? पहले स्टार्ट को फ्री कर दो और उसके बाद स्टार्ट को अपडेट करो. लेकिन जब मैं स्टार्ट को अपडेट करता हूं तो यहां पे क्या लिखूंगा? क्या चाहिए मुझे? सेकंड नोड. सेकंड नोड कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? टीआर से. टीआर के नेक्स्ट में आपने क्या डाला? सेकंड नोड. तो वही सेकंड नोड आप उठा के लेके आओ वापस स्टार्ट में. So this is without extra variable, and that's your delete first. Same algorithm here. If your start is null, underflow. Otherwise, what we do is we tackle the special case. If start next is start, एक ही नोड है, स्टार्ट को फ्री करो, स्टार्ट को नल करो, रिटर्न. अदरवाइज वी हैव टू ट्रैवर्स पीटीआर. अब पहले नोड से ट्रैवर्स करो या सेकंड नोड से, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना. सो इन दिस केस पीटीआर को मैं सेकंड नोड से स्टार्ट करता हूं, चलेगा? मैं ट्रैवर्सल प्रोसेस सेकंड नोड से स्टार्ट करता हूं. ओके, आई एम गोइंग टू ट्रैवर्स टिल टीआर पॉइंट्स टू द लास्ट नोड. देन व्हाट वी डू, पीटीआर के नेक्स्ट में सेकंड नोड, फर्स्ट नोड को फ्री करो और स्टार्ट को सेकंड नोड पे लेके जाओ. कहां से मिलेगा? पीटीआर नेक्स्ट से. रिटर्न स्टार्ट. So that's your delete first. Read this entire algorithm once. If you have any doubt, ask me. Let me tell you one more time. Imagining everything is difficult for you right now. You have to draw it. Only then you can understand. It is just a matter of practice. The more you practice, the more you're capable of visualizing. फिर हवा में सब कुछ दिखेगा, अभी कुछ नहीं दिखेगा. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सोच पाओगे.
लेकिन अभी के लिए आपको पेन और पेपर लेके ही बैठना है हर बार. डोंट टेक ए चांस. एग्जाम में भी ड्रॉ करो साइड में. भले ही आपको एल्गोरिथम पूछा हो, आप ड्रॉ करो साइड में नहीं तो एटलीस्ट रफ पेज में. लेकिन मेक श्योर that whatever you are writing, the number of steps like this way are going to be the perfect one. This is kind of a pseudocode. You can write pseudocode also. I'm not doing any semicolon afterwards, right? Another thing, I'm not going for malloc statement here. You have to write avail. Okay, so it can be okay. I'm not writing a function name and then in parameters. So I'm not even writing that perfect code, C code. So I can say this is a pseudocode. Algorithm पूछा है तो pseudocode चलेगा. दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी है. अल्गोरिदम या तो फिर स्यूडोकोड को अल्गोरिदम की तरह कंसीडर कर सकते हैं, बट डू नॉट राइट परफेक्ट सी कोड जहां पे आप फंक्शन डिफाइन करते हो, पैरामीटर्स लिखते हो. वो जरूरत नहीं है. यू हैव टू गिव इट समथिंग लाइक दिस. व्हाट इज योर इनपुट एंड आउटपुट. Okay, if this is delete first, what should we change to make it delete last? Think about it and then answer. Sorry? सेकेंड लास्ट नोड को आप पहले नोड पे लाओगे. अगर आप लास्ट नोड को डिलीट करते हो तो सर्कुलर मैनर में क्या होना चाहिए? सेकेंड लास्ट नोड जो भी है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए. डू वी हैव सेकेंड लास्ट नोड हियर इन दिस एंटायर प्रोसेस? तो डिलीट फर्स्ट और डिलीट लास्ट सेम नहीं है. When we are traversing, we also need to have one extra variable, pre-pointer. लेना पड़ेगा. Special case is same. If you have only one node, delete that node. That's the last node. Start becomes free, null. So that initial part will be same. But when you traverse, let's focus on that part only. So if you do have few nodes, in a circular manner, आप क्या करते हो? You traverse your list. TR को लेके आप पहुंच जाओगे लास्ट नोड पे, so that you can make it free. उस नोड को आप डिलीट कर पाओ. But if you want to delete it, तो उसके आगे जो भी नोड है उसका नेक्स्ट अपडेट करना पड़ेगा. वो कैसे मिलेगा? वी नीड प्री ऑल्सो. तो पहले से ही प्री को साथ में लेके जाओ. इनिशियली और लास्ट में प्री पहुंच जाएगा सेकेंड लास्ट नोड पे. सो व्हेन वी आर ट्रैवर्सिंग वी नीड टू हैव प्री पॉइंटर, प्रीवियस नोड एड्रेस. Let's do the same process. So if your start is null, underflow. Otherwise your special case, if you have only one node, start next is start, तो आप start free, start node null करके return हो जाओ. So up to this no change. But now when we start traversal process,
we also need pre-PTR, previous node. And while I am traversing my linked list, I will get backup of PTR in pre-PTR. Traversal process same रहेगा, last node तक जाना है, PTR next node equals to start. So when you are done with this traversal process, आपका PTR last node पे है, जिसको आप free करना चाहते हो. But before you make it free, आप previous node के next pointer को first node पे डाल दो. Your process is over. So something changed. Extra variable is required to just have previous node address here. Let me tell you, operations are not limited to whatever we discuss here. हमने बात की थी robustness की, means if you want to make your linked list more robust, you can think of any number of operations, define it, so users can use it. 5 नहीं 50 ऑपरेशन अगर आप सोच सकते हो तो बना सकते हो. It's only that you need to maintain your pointers. So you have to think what is required. अगर मैं कुछ भी आपको बोलता हूँ do this process, then you have to think to do that process what you have to execute or what you have to perform. अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ कि भाई insert x value before something, now before क्या है? Before value भी हो सकता है, before position भी हो सकता है, before address भी हो सकता है. Do this or insert this or delete this after something. After can be value, after can be position, after can be address. अगर वैल्यू है तो सर्च करोगे, पोजीशन है तो काउंट करोगे, एड्रेस है तो एड्रेस सर्च करोगे, नॉट डेटा. यू सर्च एड्रेस. बाकी प्रोसेस सेम है. व्हेन यू स्टॉप, यू हैव टू इंसर्ट समथिंग और यू वांट टू डिलीट समथिंग. So this is your singly circular linked list. Inside a linked list, this is what we have done till now. We started with basic understanding of linked list. Linked list will have a node. Node will contain multiple portions where you may have data and pointer, a reference. अगर वो सिंगली लिंक लिस्ट है तो एक डेटा और एक पॉइंटर है. एक पॉइंटर इंपॉर्टेंट, डेटा कैन बी एनीथिंग. एक या मल्टीपल डेटा भी आप नोड के अंदर रख सकते हो. पॉइंटर अगर एक है तो वो सिंगली लिंक लिस्ट है एंड इट हैज ओनली फॉरवर्ड पाथ. We have started looking at few operations with singly and singly circular both. Like insert first, insert last, insert at position, insert before, insert after, insert in sorted list. Similarly, we have seen delete first, delete last, delete at position, delete before, delete after, delete first occurrence, delete all occurrence, delete sorted. It may be circular. But the next thing that we need to cover is we will see everything with doubly list now. सिंगली लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर था,
डब्ल्यू लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर मिलेंगे. द बेनिफिट, अरे यार प्रीवियस नोड मिलता ही नहीं कहीं सिंगली में. हाउ कैन वी हैव अ प्रीवियस नोड? लेट्स गो फॉर डब्ल्यू लिंक लिस्ट. आप अभी तक सिर्फ आपका एक ही हाथ यूज कर रहे थे. नेक्स्ट, अब प्रीवियस भी यूज करोगे. पकड़ के रखो दोनों को, previous and next. Now that is what the doubly linked list is. In a doubly linked list, you will have both the pointers. A pointer which is pointing to the next node as well as a pointer which is pointing to the previous node. काम हमारा बढ़ेगा क्योंकि हमें दोनों एड्रेस मेंटेन करने हैं. We, because we are developers, so डेवलपर का काम थोड़ा बढ़ता है, maintaining a pointers, but it gives you more benefit. डब्ली लिंक लिस्ट को आप बोथ डायरेक्शन ट्रैवर्स कर पाओगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों पॉसिबल है डब्ली लिंक लिस्ट में. अगर एक्स्ट्रा प्रीवियस पॉइंटर मेंटेन करना है तो उसके लिए मेमोरी चाहिए. मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा. एट द एंड इट इज जस्ट द एड्रेस. अगर बड़ा सा डेटा है उसके सामने एड्रेस मेंटेन करना इज नॉट अ बिग डील. एंड दोज पॉइंटर्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ नोड्स. जितने नोड है उतने पॉइंटर बनेंगे. But still, if it gives you backward and forward traversal, then better to handle that data. So the next part is doubly linked list. और अगर doubly बनता है तो doubly circular भी बन पाएगा. ट्रावर्स करके लास्ट नोड पे गया, फर्स्ट पे आना है तो क्या करूं? पूरा बैकवर्ड ट्रावर्स करूं? Let me have a circular jump. So circular doubly linked list. Now why we need circular? So few basic arguments are something like this कि अगर आप लास्ट नोड पे हो तो फर्स्ट नोड पे जंप कर सकते हो. In a doubly linked list, first node previous pointer circular manner में लास्ट पे जाएगा. So that's one more argument you can do. In a doubly circular, पहले नोड से लास्ट नोड भी मैं डायरेक्ट जंप कर सकता हूं. मुझे ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं. पहले नोड से लास्ट नोड पे जाना है तो ट्रैवर्स नहीं करूंगा अगर वो डबली सर्कुलर है. डायरेक्ट जंप. So those are few benefits of having a circular linked list. You can use circular linked list to implement maybe circular queue. Right? And circular queue can also be used to implement priority queue. Because priority queue में क्या होता है, हर एक priority के लिए एक separate queue. Now that separate queue can be simple, can be circular. So there are a few benefits of having circular, but जब circular use करते हो then extra care, infinite loop ना हो. You have to handle that case. आपको null नहीं मिलेगा कहीं पे भी. And at the end, we'll discuss few applications of linked list. Where do we apply linked list? Yes? Even stack can be implemented using linked list. Linked list is counterpart of array. We have already discussed array and linked list plus and minus points. जब हमने linked list चालू किया तभी देखा था array versus linked list. So array, collection of data, linked list,
कलेक्शन ऑफ डेटा, दोनों कलेक्शन ऑफ डेटा ही है, पर हाउ डू यू मेंटेन योर डेटा? एरे इज अ फिक्स्ड साइज, लिंक लिस्ट इज नॉट अ फिक्स्ड साइज. जब तक रैम है नया नोड बना सकते हो. एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स, so random access is possible. लिंक लिस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट विथ स्टार्ट फर्स्ट नोड एंड यू हैव टू ट्रैवर्स इन अ लीनियर मैनर. तो रैंडम एक्सेस लिंक लिस्ट में पॉसिबल नहीं है. इंसर्ट एंड डिलीट एरे में अगर करने जाते हो देन हेडेक, एग्जिस्टिंग वैल्यू को शिफ्ट करना, दैट इज नॉट देयर इन द लिंक लिस्ट. आप सिर्फ पॉइंटर मेंटेन करो, डेटा कहीं पे भी है चलेगा. सो देयर आर फ्यू प्लस एंड माइनस पॉइंट्स ऑफ बोथ डेटा स्ट्रक्चर, एरे एंड लिंक लिस्ट. नाउ डिसीजन डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या यूज करना है और आप ये डिसीजन कैसे लोगे, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा. छोटा डेटा है, फिक्स्ड साइज आपको पता है तो एरे ले लो चलेगा, कोई बात नहीं. लेकिन इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज द साइज ऑफ योर डेटा, then you have to go for linked list. If your data is larger one, बड़ा सा डेटा है आपके पास, तब भी आपको लिंक लिस्ट में जाना पड़ेगा. क्यों? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. एरे रिक्वायर्स कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. बड़ा डेटा है तो उतना कंटिन्यू मेमोरी पॉसिबल नहीं है मिल पाए. वी हैव टू गो फॉर लिंक लिस्ट. अगर आपके डेटा में इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन ज्यादा होते हैं तो भी लिंक लिस्ट में जाओ, एरे में शिफ्ट करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ यू डिसाइड वेदर वी शुड इंप्लीमेंट लिंक लिस्ट और एरे. बट व्हेन यू वांट टू इंप्लीमेंट स्टैक और क्यू, आपको या तो एरे की जरूरत पड़ेगी या फिर लिंक लिस्ट. Let us discuss. You do have two programs in your practical list which states implement stack using linked list और दूसरा प्रोग्राम है implement queue using linked list. लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक और क्यू बनाओ. क्या करना होगा? व्हाट डू यू थिंक? मान लो कि आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट है, ऑलरेडी है बना हुआ तैयार. उसको यूज करके अगर आप स्टैक बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? एंड व्हाट एल्स? इंसर्ट लास्ट, डिलीट लास्ट. जहां पे इंसर्ट करते हो वहीं से ही अगर आप डिलीट करते हो तो हो गया स्टैक. हाँ, लेकिन इंसर्ट लास्ट डिलीट लास्ट से बेटर है इंसर्ट फर्स्ट डिलीट फर्स्ट. ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं. सो व्हाट आई विल डू इज, पुश के लिए इंसर्ट फर्स्ट कॉल करो, पॉप के लिए डिलीट फर्स्ट कॉल करो, बाकी एक भी ऑपरेशन नहीं चाहिए. हो गया आपका स्टैक, बन गया स्टैक. व्हाट अबाउट क्यू? लेट्स गो फॉर नॉर्मल थिंकिंग. इंसर्ट रियर मतलब लास्ट एंड डिलीट फ्रॉम फ्रंट मतलब फर्स्ट. So insert last, delete first will give you Q. लास्ट में इंसर्ट करो और पहले आगे से डिलीट करो, बन गया आपका Q. Because you have all these functions already implemented, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इंसर्ट डिलीट पुश पॉप ऑपरेशन कौन सा बनेगा. अगर लिंक लिस्ट की हेडर फाइल रेडी है, स्टैक की डेमो फाइल उठाओ,
लिंक लिस्ट की हेडर फाइल उठाओ, डेमो फाइल में सिर्फ फंक्शन बदल दो, हो गया आपका स्टैक. Well, that's what the benefit when you implement your linked list with number of operations. Even you can implement double-ended queue with all other restrictions, input restricted double-ended queue या तो फिर output restricted double-ended queue, वो भी बन जाएगा because we have all possible operations here. आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा. Well, we stop here for today. We are going to have a look at doubly linked list and doubly circular and applications in the next lecture. Right? So thank you everyone for being part of this session. See you in the next lecture soon.